Now, students, suppose to go ahead with circular motion, सबसे पहले मैं एक question दे रहा हूँ students. Let me get an answer for this. Okay. Without teaching you a single concept of circular motion, can anybody tell me the answer for this part of it? Students, I'm speaking about with respect to looping a loop. That means, suppose if I'm trying to release a body from a certain height above the ground level, students, and the body is looping a loop. Are you getting it? यानी मैंने बॉडी को क्या किया है? मैंने बॉडी को रिलीज किया है from a certain height above the earth surface. Okay. Now the radius of the earth. So the radius of this particular circular path is small r, students. This is center O. ये पूरा एक आर्क है और ये एक लूपिंग द लूप है. फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू गो फॉर हॉट व्हील्स. यानी ऐसे सोचो, ऐसे समझो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक कार ली हुई है. And this car is coming down an inclined plane, students. ये कार coming down an inclined plane. पूरी कार ये loop करेगा यहाँ पे, and then it reaches at the topmost position over here. And then this car goes tangentially outwards. The points are: this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. The radius of the loop is R. O is the center of the loop we consider, students. मेरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है स्टूडेंट्स, क्या हाइट से तुम बॉडी को रिलीज करोगे? ओके, at what height you will be releasing the body or the car? At what height you will be releasing the body from the ground so that the car attains a speed of under root g into capital R meter per second. Listen carefully. Under root g into capital R meter per second at the topmost position of the circular path. क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं ये कार को क्या हाइट से रिलीज करूंगा फ्रॉम द ग्राउंड? At what height above the earth's surface I'll try to release the car from the ground so that the car, when it reaches at the topmost position of a vertical circle, attains the speed of under root g capital R meter per second. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? Shob, is it clear? Yes, sir. Farhan Patel, is it clear? Farhan? Neha, is it clear to you, Neha? Neha, are you there? You're not replying. You're not unmuting yourself. Arif, what about you? Azhar, what about you? Kushali, what about you? Pranay, Pratham, Rashab, Veer, Taksh. Yes, sir. Okay. Get with the answer, students. Yes, Aksh, you can go ahead with it. Aksh Pant. Yes, sir. You said that you want to put down, you actually wrote your roll number, what? Or you wanted to put down in terms of your roll number and all, Aksh? Yeah, like the roll number given by my center, Okay, which center you are from? Khagar. Okay, you can put down, doesn't matter, I'll take you in. Yeah. Okay. Okay, students, get me the answer, students. Now, at what height above the ground the body should be released so that it should get a velocity of under root gr when the body undergoes looping a loop? Hope it's clear to all of you.
Yes, anybody? Valentino, why you are late? Valentino, are you there? Why are you late? Sir, I came home just now. Yeah, what's the reason? Why you are late? वही पूछा late क्यों हुआ? Sir, I was offline class at branch. अरे क्या बात है, किसके लेक्चर्स थे? मिरर और ब्रांच? Yes, sir. किसके लेक्चर्स थे? सर सीएच सर का सर। अच्छा, तो तुम भी अटेंड करके आए इज़हार? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि स्टूडेंट्स कितने डेडिकेटेड है, अटेंड भी करते हैं और लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं वापस आके। वेरी गुड। स्टूडेंट्स आए थे वहाँ पे इज़हार? यस सर ओके। आए थे, फिर जिस गति से आए थे उस गति से भाग भी गए। अच्छा, जिस गति से आए थे उस गति से भाग भी गए? क्यों भाई? सर मतलब उसके बाद एक और एक लेक्चर था मैथ्स का, तो वो मेंशन नहीं किया था रिवीजन लेक्चर है। अच्छा तो सर आए, सर लंच कर रहे थे, सर का लंच ही हो गया फिर। अच्छा, सर आए, सर ने अपना लंच किया, तब तक सारे बच्चे भाग गए? हाँ क्या बात है, एंजॉय करो। फाइन, whatever it is, there might be some schedules का प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स बी सेल्फिश। एक ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा कुछ पर्पस हो तो तुम तुम्हारा पर्पस सॉल्व करके यू शुड लीव, डजंट मैटर, लेकिन पर्पस सॉल्व होना जरूरी है स्टूडेंट्स। यस, इज़हार कम ऑन आंसर दो, वैलेंटिनो आंसर दो, शर्ब। सर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर कुछ कुछ याद है। वो आपने एमजीएच से कंपैरिजन करवाया था। क्या बात है, भूल भी गया देखा, तुरंत भूल गया देखा। यही मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, फिर उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि सर्कुलर मोशन किसी का नहीं हुआ था ना। हाँ सर। वापस आज पूछ रहा हूँ, तेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है? नेहा, कैन यू आंसर नेहा? Yes, you have to use, but what is your answer? Unmute yourself, Neha. I don't want to read your text. Fast. ये कहाँ पे चले गए? मनोमय और वो सब कौन थे? स्वयं या श्याम? श्याम तुम्हारे बैच में ही है? मनोमय? The students are still absent. Neha, this is happening for a long time. It's not for the first time. This is your reason for several lectures. It's going like that. Fine, doesn't matter. But answer fast now. Christy, what about you, Christy? Arib? Hey, Pew is also there. लेकिन वो तो अभी जाने दो, अभी उसको तो कुछ पूछना ही नहीं है। Sir, I'm sorry. छोड़ दो अभी, forget about it. उसको पूछने का भी कुछ मतलब नहीं बनता।
Veer, I'm what about you? sorry. It's fine now. Veer, what about you? Veer, Kushali, Taksh, Shoham, Yes, sir. answer दो. Yes, sir. खुशहाली तुम आए थे ना लेक्चर्स में? Yes, sir. You're very dedicated, very good. All the girls should learn from you. Purple House. Those who are staying at Mira Road branch, or for Mira Road branch. He was very happy. She's putting happy faces. Okay, students, can I solve it, students? Solve करूँ मैं ये? Izar, why can't you get it? Shubh, why can't you get it? मुझे ये पता नहीं चल रहा है. अगर थोड़ा सा भी hint तुम्हें पता है, and Neha, when you actually told law of conservation of energy, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? Why are you not able to get it? Students, when you're trying to solve this particular question, you have to simply say the car was initially at point A, students. Now it's reaching at point D. Can you tell me the car is at point D? That means it's what height above the ground? We'll say, sir, twice the radius. So A small h will be equal to twice the radius. Yes, sir. कार को यहाँ से रिलीज किया है, यानी यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगी सर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the car at point A will be equal to total mechanical energy at point D. आया ना? हाँ स्टूडेंट्स, इज ऑल हाँ क्लियर सर, है? हाँ यानी ये कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हियर कम्स संजीवनी. नाउ व्हेन आई से टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए कौन सा एनर्जी होगा? संजीवनी, आर यू देयर? संजीवनी, संजीवनी, अनम्यूट योरसेल्फ. पॉइंट ए पे कौन सा एनर्जी होगा, जल्दी से बताओ. संजीवनी, आर यू लिसनिंग टू मी? सुनाई दे रहा है? She went. See, this is the problem with the students. यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा स्टूडेंट्स? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ पे कौन सा होगा? काइनेटिक एनर्जी. सो इट्स हाफ m v square. somebody writes down half m r square. बोलो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ m r square लिख सकते हो इज़हार? हाँ इज़हार, सर हाफ m जी r आर हो गया square, ना? हाफ m v square होगा ना? हाँ, हाँ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है ना, हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं मालूम है? हाफ m r square. बोल, ऐसे भी स्टूडेंट्स है, क्या करें अभी हम? बोलो. ओके, सर हाफ आर m. तो डिस्टेंस है ना, रेडियस है ना? हाँ, r is the radius of the circular path. लेकिन जब बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v square. हाँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh. जब ये डी पे आते हैं तो यहाँ पे भी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, एट पॉइंट ए ये जो हाइट होगा वो कैपिटल एच है, लेकिन एट पॉइंट ए द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. तो तुम्हारी जो v नहीं होगा, ये तुम्हारा u आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट. जब भी तुम कार को यहाँ से रिलीज करते हो ना स्टूडेंट्स, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So I'll take this as 0 plus mgh. What exactly the height? I need to find out. Half m. What's the velocity at point D? Under gr v square. So can I say gr? क्या ये clear हुआ students? यस सर. Yes, sir. Plus mg. What is the height of point D from the ground? What is the height of point D from ground? बताओ. Sir, 2R. 2r है सर. Absolutely correct. Absolutely correct. That will be twice radius. तो ये तुम्हारा twice radius हो जाएगा. Now can you solve and students हाँ get the सर. value of h? हाँ यार. Students?
तो देखो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, ये कितना होगा 2 हाफ प्लस 2 कितना होगा 5/2 है ना, तो ये हो जाएगा 5/2 mgr, और यहाँ पे ये तो 0 है, ये होगा mgh, mg and mg will get cancelled. So what exactly the height the body has been released from? 5/2 5. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। So students, अगर किसी ने पूछा क्या हाइट से तुम बॉडी को रिलीज करोगे from point A or from position A which is above the ground level so that the car attains a velocity of 100 gr, ये आंसर होगा। अगर वही मैंने उल्टा दिया स्टूडेंट्स, सोचो मैंने अगर सपोज h को मैंने 5/2 r दिया, मैं ये पूछ सकता हूं मैं, तो भी मेरा आंसर 100 gr ही होगा। करना कैसा है, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्रीड? यस सर। Okay, fine. So students, law of conservation of energy is actually the total mechanical energy at all point of its motion remains constant or is conserved. So ये हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये पाथ सर्कुलर, लेकिन पूरा प्रॉब्लम हम लोग ने सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैन आई इरेज स्टूडेंट्स, इसको मैं इरेज कर दूं अभी? Yes, sir. ओके, Just a second. या Mariam, are you there? It seems you are not in lecture. Reply, otherwise you are out of lecture. There are students who are not. Manoma is one of them. He's not there from certain branch. Let's we consider. Yes, Neha, I admitted you. Since अभी मैं erase कर सकता हूँ इसको? Yes, sir. Okay. Okay, students. Now please pay attention, students. When you speak about students, your concept of circular motion. So circular motion, students, is simply we consider as motion of a body along the circumference of a circle. Okay, it's motion of a body along the circumference of a circle. Okay, with constant radius or along an arc. यानी या तो तुम ऑब्जेक्ट को सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में मूव कराओ, ये सेंटर है, और बॉडी मूव हो रहा है along the circumference of circle, radius is capital R. Yeah, you can make a body to move along an arc. Okay, so this is arc A, X, B. जब भी अभी मैंने बताया था students, okay, so the body is set to move along an arc. I can consider the body set to move along an arc of radius R.
O is the center of the circle we consider, of the arc we consider. Such a motion is called a circular motion. Okay. So circular motion is motion of a body along the circumference of a circle or along a arc of constant radius, students. Now ध्यान से सुना students. Circular motion जब भी तुमने पढ़ा है तो उसमें what exactly you have come across? So listen carefully, students. जब भी circular motion के बारे में पढ़ोगे ना students, तो you consider how exactly a particle is. अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करते हो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम पार्टिकल को कैसे रिवॉल्व कर रहे हो, कैसे रिवॉल्व कर रहे हो. यानी अगर तुम देखोगे, तुम यू कैन से कि सर आई कैन मेक अ पार्टिकल टू रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, या एनी ऑफ द प्लेन स्टूडेंट्स. यानी सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. ये है क्या? टू डायमेंशनल मोशन. यानी वो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन में भी हो सकता है. अभी यहाँ पे मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया स्टूडेंट्स, और इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस. सो हाउ इज द पार्टिकल सेट टू मूव? अगर मैं ये पार्टिकल पी ले रहा हूँ तो ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन. लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? सर ये पार्टिकल पी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पॉइंट ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. ये जो तुम आर देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये जो तुम आर देख रहे हो, ये आर क्या दिखाता है? ये आर दिखाता है पोजीशन वेक्टर. ये ध्यान रखना. यानी अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल P परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. एग्रीड? आर बार क्या है? तुम बोलोगे सर आर बार है पोजीशन वेक्टर. ध्यान में रखना, अभी पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर यानी वो एक उसका पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताता है. अभी सोचो, ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन है. पार्टिकल पहले यहाँ पे था, लेट अस से पार्टिकल का पोजीशन पहले यहाँ पे था. कुछ टाइम के बाद में पार्टिकल यहाँ पे आया, कुछ टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे चला गया, कुछ टाइम पे बाद में पार्टिकल यहाँ पे आया, कुछ टाइम पे बाद में पार्टिकल यहाँ पे आया. तो ये क्या दिखाता है? अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये इसका इंस्टेंटेनियस, अगर यहाँ से अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं तो ये क्या दिखाएगा? सर ये पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन दिखाता है. ये है इसका पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर का दूसरा नाम भी तुम क्या लेते हो? रेडियस वेक्टर. कहाँ पे पढ़े हो? अगर मैं पूछा कहाँ पे पढ़े हो तो तुरंत तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर हम लोग वेक्टर्स में पढ़े हुए. Now when you see the particle P is performing circular motion, लेकिन डायरेक्शन क्या है? How exactly the direction? को बता सकते हैं how is the direction of motion? तो डायरेक्शन कौन से में है? तो बोलेगा सर डायरेक्शन is anti-clockwise. Are you getting it, students? Yes. और डायरेक्शन anti-clockwise. Anti-clockwise को तुम ऐसे भी बोल सकते हो counter clockwise. Is this clear, students? Anti-clockwise is also called as what? Counterclockwise. क्या क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Anti-clockwise. अभी ध्यान से सुनना, तुमने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, वेक्टर्स पढ़ा हुआ है तो राइट हैंड स्क्रू रूल अगर तुम लेते हो स्टूडेंट्स तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होता है? ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस. अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मोशन लेते हो स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोशन तुम लेते हो, अगर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो हाउ एक्जैक्टली तुम्हारा राइट हैंड स्क्रू रूल भी कंसीडर all the angular terms are along positive axis. All the angular terms are along which axis? Positive axis, students. लेकिन अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज है, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज. ये देखो, ये सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज है, ये सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है. Are you getting it, students? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, इट्स sir. एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे तुम्हारे एंगुलर टर्म्स क्या होंगे? तो बोलोगे सर यहाँ पे मेरे एंगुलर टर्म्स हम क्या लेंगे? अलोंग Y axis. negative axis. Which axis? Negative. Negative axis. Students, ये positive axis. Students, where exactly you have learned this part? You'll easily say, sir, this part we have learned it in vectors. This part we have learned it in vectors.
Let us understand. पहले हम समझते हैं कहाँ पे हम लोग ने पढ़ा हुआ है। हमें ये समझ स्टूडेंट्स कहाँ पे वेक्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अगर तुम्हें पता हो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट्स पढ़े हो स्टूडेंट्स वेक्टर्स में? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, if in case if I have done vectors with you all, तो मैंने बोला होगा स्टूडेंट्स, when exactly or where exactly cross products is used in physics? ये बताओ पूरे फिजिक्स में सर्कुलर मोशन मोशन और रोटेशनल में ही होगा स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल में ही होगा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट्स इज यूज्ड ओनली ओवर देयर इन एंटायर फिजिक्स, और कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट्स यूज नहीं होता। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन है ना, देखो ना एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो जितने भी एंगुलर टर्म्स हो सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सारे एंगुलर टर्म्स नेगेटिव होंगे। अभी तुम्हें ये सोचना है एंगुलर टर्म्स यहाँ पे कौन से है सर, ये एंगुलर टर्म्स क्या बात कर रहे हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। यानी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ दो टर्म्स के बीच में। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स। ओके, एक तरफ मैं लिखूंगा लीनियर टर्म्स और एक तरफ मैं लिखूंगा एंगुलर टर्म्स। सो नाउ इफ इन केस इफ आई हैपन टू शो इट विद अ बाइफिकेशन, ओके, तो ऊपर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स लीनियर टर्म्स, ओके, नीचे मैं लिखूंगा एंगुलर या रोटेशनल टर्म्स। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसके लिए हम कौन से वेरिएबल्स यूज करते हैं? ध्यान से सुनना। और वही बॉडी अगर सर्कुलर पाथ है या रोटेट करता है तो व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वेरिएबल्स स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर मैंने एस बार लिखा स्टूडेंट्स, तो मुझे बता सकते हो एस बार का मतलब क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, Displacement. फिर मैंने पूछा व्हाट इज रेट एट व्हिच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ds by dt, so what exactly you say students? What is the answer? Velocity. वेलोसिटी फिर तुम बोलोगे व्हाट एग्जैक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? Acceleration. Absolutely correct. Now if in case if I happen to give you mass into acceleration, if I give you, then what exactly I'll consider this as? फोर्स Force. Agreed. Linear moment, if I give you mass into linear velocity, what exactly I'm going to give you? Linear momentum. Momentum. If I give you kinetic energy translational, that is body moving along a straight or slightly along an arc, we consider translational kinetic energy is half mv square. किसी ने r square लिखा था स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो half mv square, that is translational kinetic energy students. Okay, so that is translation for a body moving along a straight path we can consider. अगर मैंने पूछा what is the formula for work done for a body moving along a straight path, कैसे लिखोगे? Force into displacement, है ना? फिर अगर मैं लिखूंगा पावर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी आई कैन राइट डाउन। ये देखो कितने सारे इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, ये सारे लीनियर टर्म्स है। ये सारे कौन से टर्म्स आ रहा है? लीनियर टर्म्स। अगर मुझे काइनेमैटिक्स इक्वेशंस लिखने स्टूडेंट्स, तो क्या लिखूंगा मैं? v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ या ना? एग्रीड? यस सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन कौन सा होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। स्टूडेंट्स ये सारे कौन से हैं? ये सारे लीनियर टर्म्स है। अभी हम लोग ने जो काइनेमैटिक्स 1 किया था उसमें हम लोग ने यूज किया था। ये तुम लोग ने कहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट्स? देखो लीनियर काइनेमैटिक्स में हम लोग ने s, v और a के बारे में पढ़ा है। f इक्वल टू ma तुम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है? लॉज ऑफ मोशन। p इक्वल टू m इनटू v कहाँ पे पढ़ा है? लॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे। w इक्वल टू fs डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, वापस वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर्स पढ़ा है, एज वेल एज वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे। और ये तीनों इक्वेशन तुमने कहाँ पे पढ़ा है? बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ईदर अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्री फॉल। इसके साथ में हम लोग ने वो भी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। चलो कोई बता सकता है? किसको याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन? चलो बता सकता है कोई? फास्ट, no need to turn the pages. Anybody can give me the formula for displacement during nth second of its motion? Fast. Neha, come on fast. सर u प्लस हाफ a
into bracket. Yes, sir. हाँ, Into u bracket plus 2n minus 1. okay 2n minus 1 absolutely correct. It's u. Sir, n-1/2 ना? हाँ तो n minus 1/2 को सॉल्व करना. अरे सॉरी सॉल्व करना n minus हाँ हाफ को हाँ सॉल्व हाँ 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 है ना. तो u प्लस उसने a/2 बोला तो a into bracket n minus हाफ भी लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. There's one more person who raised yes sir hand. my bad. Yes. देखो displacement during n second of its motion. Students ये सारे linear kinematics है. अभी देखो इसी के साथ में हम angular terms ले रहे हैं. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. सर्कुलर मोशन में कौन से टर्म्स यूज होंगे. यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स. कैन यू गिव मी व्हाट इज थीटा स्टैंड्स फॉर. ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या हो जाएगा. कोई बता सकता है स्टूडेंट्स. circular displacement. Angular This is displacement. angular displacement and this angular displacement is measured in radians. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. वेयर हैव यू कम अक्रॉस दिस. कहाँ पे पढ़े हो तुम लोग. थीटा. थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. कहाँ पे पढ़े हो. मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो. प्लेन एंगल Trigonometry. रेडियंस. हाँ स्टूडेंट्स. S is equal to theta r. स्टूडेंट्स मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो. Yes sir. तो देखो थीटा तुम्हारा एंगल है और ये सर्कुलर पाथ है. यानी ये सोचो ना अगर सपोज मैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे लेता हूँ तो देखो इट विल ट्रेस सम एंगल. ये हुआ तुम्हारा थीटा. समझ में आया. ये हुआ तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. फॉर एग्जांपल अ मिनट हैंड स्टूडेंट्स. अ मिनट हैंड an hour hand or a second hand of a clock. It performs circular motion. Students, the tip of the minute hand, the tip of the hour hand, the tip of the second hand is performing circular motion. So it traces angle theta. अगर मैं सेकेंड हैंड लूं सेकेंड हैंड तो अगर सेकेंड हैंड को पूरा एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए. 60 seconds. Agreed. One revolution corresponds to how much. 60 seconds. That is 360 degrees. And in how much time. 60 seconds. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस. ओके. Yes, sir. अभी जब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. So can you tell me what is rate of change of angular displacement will be called. Angular velocity. velocity. Very good. Angular velocity. Please बाकी students ध्यान से सुनो. ध्यान से सुनो. See the answers which I'm getting it. Even Veer is also answering and Neha is also answering. Students, angular velocity is the rate at which angular displacement takes place. ये रेडियन है तो इसका यूनिट क्या होगा. रेडियन पर सेकेंड. जैसे ये मीटर है तो ये मीटर पर सेकेंड हुआ. हाया ना. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes sir. ये है लीनियर एक्सेलरेशन. ये लीनियर एक्सेलरेशन तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा अल्फा दिखा दूं तो ये क्या बन गया. इसको मैं बोलूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट डू आई कॉल दिस एज. Angular acceleration. Angular acceleration. एक्सेलरेशन dt by dt. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. d omega by dt. Students, this is rate of change of angular velocity. देखो ना थोड़ा एकदम थोड़ा सा ध्यान दो स्टूडेंट्स. ये एक टाइप का आई कैन गो फॉर इन करस्पॉन्डेंस विद स्टूडेंट्स. अगर मैं s को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं तो थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा. इसको लीनियर वेलोसिटी बोलूंगा तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा. इसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलूंगा तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलूंगा. अगर मुझे किसी ने पूछा लीनियर एक्सेलरेशन को कैसे बोलोगे. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी. ये मीटर में. ये मीटर पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे ये रेडियन पर सेकेंड. क्या इसका यूनिट किसी को पता है. क्या होगा. Radian per second square. रेडियन का वेरी गुड. आंसरिंग. गणपति बापा मोरिया है ना. नया. Yes, sir. यस.
So alpha is given by radian per second square we consider. That's angular acceleration. अभी ध्यान से सुनना students. यहाँ पे force is equal to mass into acceleration. Hey, even Pew also answered. Okay, very sorry. Okay. Now listen carefully, students. If in case if I say force is equal to mass into acceleration, यहाँ पे अभी for the time being हम mass के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, students. अगर तुम्हें मालूम हो टॉर्क का कंसेप्ट आता है, ये देखो ये लीनियर फोर्स है स्टूडेंट्स. अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एंगुलर, द एंगुलर फोर्स वी कंसीडर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क. स्टूडेंट्स किसको पता है ये टॉर्क को हम क्या नाम बोलते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस टॉर्क? कुछ याद आ रहा है? 10th स्टैंडर्ड में फोर्स में पढ़ा होगा. जर्क. क्या बोल रहे हो? जर्क होता है ना? टॉर्क है, लेकिन टॉर्क को तुम क्या नाम देते हो? Moment. मोमेंट ऑफ. यस, मोमेंट ऑफ फोर्स. व्हाट डू यू कॉल दिस एज? ये जो फोर्स है ना स्टूडेंट्स, which makes a body to rotate, and torque is always given by the formula R cross P. Students, torque is given by what formula? R cross F, not R cross P, R cross F. ये तुमने कहाँ पे पढ़ा स्टूडेंट्स? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा है तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में? हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई रॉड को मुझे रोटेट करना है स्टूडेंट्स, देखो ना, ध्यान से सुनना, ये रॉड को रोटेट करना है तो देखो एक फोर्स में ब्लू कैप पे लगाऊंगा, दूसरा फोर्स में यहाँ पे लगाऊंगा. हाउ इज दिस फोर्स एक्टिंग? लुक एट माय फिंगर. इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली? यस. See, the body is undergoing rotational. Yes, it's rotating about this end. So देखो, torque is moment of force. This is the momentum and this is force applied. ये हुआ तुम्हारा torque. यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है स्टूडेंट्स. यहाँ पे कौन सा मोमेंटम आएगा? एंगुलर मोमेंटम. विच मोमेंटम? Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम इज अ टर्म यूज्ड फॉर एंगुलर, क्योंकि हम एंगुलर टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो देखो how am I going with respect to it? Linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration, linear force, angular force is called as moment of force, linear momentum, angular momentum. ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, वी हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. व्हिच एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला मैं बाद में दूंगा, ये जब भी हम रोटेशनल डायनामिक्स में जाएंगे तभी. लेकिन ये टर्म्स है जो तुम्हें ध्यान में रखना है. यहाँ पे वर्क डन स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा. देखो ना स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है? ये एफ है. ये कौन सा फोर्स है स्टूडेंट्स? व्हिच फोर्स इज दिस? लीनियर फोर्स. व्हिच फोर्स इज दिस? Linear. ये एस क्या है? Displacement. लीनियर Displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो ये टॉर्क क्या होगा? इज इट लीनियर फोर्स या एंगुलर फोर्स? Angular Angular force. force. इसका नाम हम क्या बोलते हैं? Moment of force. और थीटा क्या है? Angular Angular displacement. displacement. एक टाइप का हम करस्पॉन्डेंस में ले रहे हैं. पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे पावर कैसे होगा? फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क. ये लीनियर वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? बता सकते हो? Omega. वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट वन. स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है कैसे टर्म्स में खींच रहा हूं मैं, कैसे टर्म्स बना रहा हूं? यानी अगर तुम एंगुलर टर्म्स को ध्यान से समझना चाहते हो तो कौन से टर्म्स हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टॉर्क. एंगुलर मोमेंटम इज एल. वर्क डन फॉर रोटेशनल मोशन, वो पावर एक्सर्टेड फॉर रोटेटिंग बॉडी. ये सारे तुम्हारे एंगुलर टर्म्स होंगे. चलो, अगर मुझे मैंने काइनेमैटिक इक्वेशन दिए स्टूडेंट्स, क्या कोई मुझे ये सारे काइनेमैटिक इक्वेशंस रोटेशनल फॉर्म में दे सकता है? एंगुलर टर्म्स में दे सकते हैं? चलो, पहला इक्वेशन, v is equal to u plus et. Can anybody change this into angular? Omega square is equals Yes, sir. बोलो.
The omega is equals to omega naught plus alpha t. Very good. Very good. Over here we have Izar as a good one. स्टूडेंट्स देखो कितना शांति से और ध्यान दे के उसने आंसर दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तुम सारे आंसर दे सकते हो, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। When I asked this particular question, the rest of the 22 students can easily answer. कैसे? सर देखो ना, सिंपल है। अगर ये v is equal to u plus at है, ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी को उसने ओमेगा बोल दिया। इनिशियल u है तो उसने u की जगह पे ओमेगा 0 बोल दिया, वो इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर है। e की जगह पे उसने क्या डाल दिया? अल्फा डाल दिया। टाइम तो वैसे ही होता है t। घड़ी का टाइम, कोई बॉडी स्ट्रेट जाता है और कोई बॉडी सर्कल में मूव होता है तो टाइम अलग थोड़ी होता है। टाइम तो टाइम ही दिखाएगा, सेकंड्स में दिखाएगा, तो टी वैसे ही होगा। तो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? व्हाट एग्जैक्टली फॉर्मूला ही सेड इट? ओमेगा is equal to omega 0. What is it? Omega is equal to omega 0 plus alpha into t. That's your first equation. V is equal to u plus at के हिसाब से। Now can anybody give me the equation for the second one? Angular displacement is equal to omega naught t plus half alpha t square. Absolutely correct. See, angular displacement, and this is V. You answered V. Very good. Yes, Guys sir. are really smart. Huh? Guys are really smart. लड़कियां मैं only Neha is answering. Come on, girls. What are you doing? Support Neha. S is equal to ut plus half alpha into t square. Third equation. Anybody? V square is equal to u square plus 2as. Omega square is equals to omega square naught plus 2 alpha theta. Very good, Neha. Omega square is equal to omega naught square plus 2 into alpha into theta. ये देखो, ये सारे इक्वेशंस है, कौन से हैं? रोटेशनल काइनेमैटिक्स, और काइनेमैटिक्स यूज फॉर बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट्स, ये लीनियर काइनेमैटिक्स, ये रोटेशनल काइनेमैटिक्स। अगर मैंने पूछा कैन एनीबॉडी गिव द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग n सेकंड ऑफ इट्स मोशन फॉर सर्कुलर, चलो ये वाला बता सकते हो कोई? एसेंट, ये लीनियर है, मुझे एंगुलर में चाहिए। फास्ट फास्ट, एनीवन? द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, हाँ बोलो। The theta nth is equals to w naught plus alpha, or rest remains the same. वेरी गुड। देखो ना, इनिशियल की जगह पे ओमेगा 0 आया, प्लस आया, ए की जगह पे वो अल्फा डालेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? n माइनस हाफ ही रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? हाउ एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आर गेटिंग द आंसर? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, these are all angular terms, these are all linear terms, and now I'm going to tell you how, when do we consider angular terms to be positive, when do we consider angular terms to be negative. Angular terms are positive. On a positive axis we consider for body moving in anti-clockwise, and negative when the body is moving in clockwise direction. ये मैं भी बताऊंगा। यानी सबसे पहले तो मैं angular terms के बारे में बताना चाहिए ना, तो ये तुम समझोगे। तो angular terms क्या है? अभी तुम्हें बोलना angular displacement radians, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। अभी तुम्हें ये यूनिट्स के साथ में आना चाहिए और फॉर्मूला भी आना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होगा सर? न्यूटन मीटर होगा, ये इसका यूनिट है। गेटिंग इट? आर इनटू एफ। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम एल, वहां पे लीनियर मोमेंटम पी है। यहाँ पे रोटेशनल क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू ओमेगा। These are all linear kinematics, these are all angular kinematics. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, sir. क्या तुम्हारे मैथ्स के भी लेक्चर्स है क्या अभी स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, नहीं सर, वो शायद गलती से था। गलती से हो गया। एसपीएम सर ने पोस्ट किया ना?
हाँ सर, उनका लेक्चर कल है। Okay, students. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? सर वेट, Please, students, is the audio and video fine? Can you see my writings clearly? Is it clear? The board is clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी तरह से लिखो, ध्यान से लिखना, students. गलत मत लिखना. अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो पूछो. But don't write anything incorrect, students, please. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. ये तो किसी भी हाल में लिखना है एंगुलर टर्म्स, so that your chapter becomes easier. कि ये तुम्हें familiar होना है सारे टर्म्स के साथ. Sir, Anahita is at the waiting room. Could you please take her in? Who is in the waiting room? Anahita. Why she is not there initially and why she is now in? She's messaging me. Did you guys did a lot of work because she thought the lecture to be started at 4:30. Who said it? Anaita? Yes, sir, I thought the lecture was at 4:30. हे भगवान, क्या करो? किसने बताया? ये तुम्हारे फ्रेंड नहीं बताया होगा, प्यू नहीं बताया होगा ना 4:30 का लेक्चर है. Sir, I didn't say it, I swear. No, sir, no, sir. Actually, I took the screenshot of the wrong dates. Oh my god. Oh god, you our entire 1 hour का lecture. This is Yes, not. sir. Sir, can you send the recording? I'll do it. Okay, it will be posted in the this one channel के ऊपर होगा, लेकिन text me, I'll send it to you personally in that case. Okay, thank you, sir. Go through it, yeah. This is not done. And most of the students might be waiting for it, na? Yeah, sir, most of the students must be saying it 4:30 का lecture होगा ना? Is it 4:30 posted over there or 3:30? 3:30 No, sir, है। it is Sir, 3:30. Okay, fine. तो फिर सही है. Okay, can I erase it, students? Yes, sir. Okay, तो अभी ये ध्यान में रखना students. Two-dimensional motion, circular motion can be in x, y, y, z, z, x. Motion of a particle along the circumference or along an arc of constant radius. When you consider over here, your circular motion in this case is in what direction? Anti-clockwise. Anti-clockwise का दूसरा नाम है counter-clockwise. ये जो R हम देख रहे हैं, इसको हम नाम देंगे position vector या radius vector. कोई भी body anti-clockwise में जाएगा तो देखो मेरा thumb तुम्हारे आंखों में जा रहा है students. The thumb is pointing into your eye. The thumb is pointing where? Into your eye, students. Is that clear? So that we consider as anti-clockwise. This is positive axis we consider. Clockwise clear, thumb is going into the whiteboard we consider. Okay. There's a difference between linear terms and angular terms. I'll speak about the angular terms: angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular force, that's moment of force, angular momentum, work power. These are rotational or circular kinematics we consider. Okay, this is the displacement during n second of its motion. Units to take care of it: radian per second square. Torque is always in Newton meter we consider. Okay, now let us understand when do I take this as positive and when do I take this as negative, students. Please pay attention to this one. Now, when you look at the diagram, students, I've given you that the particle is moving in an anti-clockwise direction, students, over here only. Okay, where I said it that R bar is a position vector, students, and it shows the instantaneous position of the particle. That is, particle at a particular instant of time. Particle at a particular instant of time, students.
Now when you carefully look at this diagram, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जब तुम डायग्राम को देखोगे तो don't you think so students, the particle is performing circular motion? Think as if you have a stone. Should think as if you have a stone and you are tied a thread to it, and you are trying to move the particle. Either the particle is said to be in a horizontal plane or vertical plane. Suppose अगर ये तुम्हें vertical plane में मैं दिखाता हूँ students, और ये सोचो कि अभी stone यहाँ पे है, agreed, यानी ये इसका instantaneous position दिखा रहा है, और ये सोचो कि ये धागा है जिससे बांधा हुआ है. Students, मुझे बताओ, if in case if I cut the string, then according to you students, where exactly the stone is going to go? Motion is in anti-clockwise. If I Tangentially thrown out. okay, so see, somebody's answering. So what exactly it is? The stone is going to go tangentially outwards. जिस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है तो tangentially जाएगा. यहाँ पे भी tangentially चला जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे कट मारा तो यहाँ पे tangentially चला जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे कट मार दिया तो ये tangentially चला जाएगा. यानी ये जो tangent से बना, और ये क्या है सर? ये सारे लीनियर टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स. ध्यान से देखो, ये सारे लीनियर टर्म्स है. यानी अगर मैंने यहाँ पे कट मारा तो यहाँ पे कौन सा होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हमें नाम दूंगा टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT. मास इनटू टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, फोर्स टैंजेंशियल. कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम. देखो स्टूडेंट्स, ये सारे लीनियर मोमेंटम टैंजेंशियली चले जाते हैं. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा. हाँ सर, सही बात है. अगर कोई कार रोड के ऊपर सीधी जा रही है और मैंने बोला कि कार इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा ना. एक सिंपल एग्जांपल लो स्टूडेंट्स, तुम्हारे हाथ में भी कोई ऑब्जेक्ट रखो और तुम ऐसा ऑब्जेक्ट को फेंको, ट्राई टू फ्लिक इट इन द एयर, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ गया, तो वेलोसिटी भी उसी के डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा. तो ये सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ये सारे कैसे जा रहे हैं? टैंजेंशियली जा रहे हैं. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, पोजीशन वेक्टर देखो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर देखो, यानी तुम देखोगे ना, तो ये तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी, ये तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी, ये तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी है ना, टैंजेंशियली जा रहा है. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर तुम ले रहे हो, ये क्या बन रहा है सर? ये तो मेरा पोजीशन वेक्टर बन रहा है. यानी ये क्या होगा सर? ये तो मेरा आर बार है, ये सेंटर है. ये क्या है? आर बार है. ये क्या हो जाएगा? आर बार है. ये क्या है? आर बार है, पोजीशन वेक्टर. स्टूडेंट्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी? 90 डिग्री, Yes, sir. 90 degree, 90 degree, 90 Yes, degree. sir. At each instant they are mutually perpendicular. At each instant they are mutually perpendicular. So now can you tell me what will be the dot product of Vienna? What will be the dot product of Vienna? स्टूडेंट्स को बता सकता है व्हाट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ VNR क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट. 0. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट वीर. सी ही इज सो फास्ट इन आंसरिंग. बताओ जीरो कैसा है? Sir, VR cos theta. एब्सोल्युटली करेक्ट. Yes, sir. VR cos थीटा. शुभ. देखो cos ऑफ 90 थीटा कितना होगा? 90 डिग्री. व्हाट एग्जैक्टली cos ऑफ 90? सर cos ऑफ 90 विल बी 0, तो दैट आंसर विल बी 0. ओ, यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि सर्कुलर मोशन को समझना है तो सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या ये अप्लाई होगा? हाँ स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर. स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही रहने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. तभी जाके तुमने शायद 10th स्टैंडर्ड में अगर सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है since direction of motion goes on changing. किसका डायरेक्शन? since direction of velocity
changes at each instant along circumference of circle. Therefore, motion is, कोई बोल सकता है? कोई स्टेटमेंट कंप्लीट कर सकता है? Since direction of, yes, since direction of velocity changes at each instant along the circumference of circle, motion is कोई कंप्लीट कर सकता है? Circular motion. No, motion is Accelerated. accelerated. और ये तुमने 10th में पढ़ा है, जिसने भी फोर्स पढ़ा है, जिसने सर्कुलर मोशन पढ़ा है. Students, ICSE students have पढ़ा है circular motion. Why do we say that uniform circular motion is an accelerated motion? ये क्वेश्चन पूछा गया है टीचर्स में. तो तुम्हारा रीजन क्या है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट. And at each instant, how is V and R? They are mutually perpendicular. उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो तुम बोल सकते हो ना मोशन सर्कुलर है. हाँ, यानी V का डायरेक्शन चेंज होता है. अगर V का डायरेक्शन चेंज होता है तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन ऑफ स्पीड गोज ऑन चेंजिंग. Therefore, motion is accelerated. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Now let us see about positive. Anti-clockwise positive कैसे लेते हैं? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. अभी ये सोचो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. अभी ये सोचो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया स्टूडेंट्स. ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, सोचो कि ये कार्डबोर्ड है, ओके. और मैंने कोई पार्टिकल दिया है स्टूडेंट्स, और ये पार्टिकल को मैं परफॉर्म करा रहा हूँ सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स तुम्हें दिख रहा है इलिप्टिकल, लेकिन है सर्कुलर. हम टॉप व्यू ले रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा साइड व्यू और टॉप व्यू ले रहे हैं, है ना. लेकिन है पाथ सर्कुलर, यानी रेडियस कांस्टेंट है स्टूडेंट्स. ये ध्यान में रखना, सब जगह पे रेडियस कांस्टेंट है. लेकिन ये जो पार्टिकल पी है ना, वो कैसे मूव हो रहा है? देखो कैसे मूव हो रहा है. इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तुम यहाँ से देख रहे हो तो कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है? Counterclockwise. Counterclockwise. वेरी गुड. ये कौन बोला काउंटर क्लॉकवाइज? जार वेरी गुड. अभी यहाँ पे देखो, The पी इज अ PU. पॉइंट व्हिच इज, अरे पीयू ने बोला. वेरी गुड पीयू, Sir. इतना इंटेलिजेंट है. लेक्चर्स नहीं अटेंड करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं. देखो पॉइंट पी, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. Point P is performing circular motion, students, in anti-clockwise direction. Okay, it's going in anti-clockwise direction, students. अभी देखो ये कौन सा plane है? I'm taking this as XY plane. ध्यान से देखना students. ये horizontal x-axis. Agreed. ये है center और ये हुआ y-axis. यानी मुझे बताओ, how is a cardboard placed? Is a cardboard placed along XY plane, YZ plane या ZX plane? हाँ students, how is a cardboard placed? क्या बोलोगे तुम? XY plane है ना, horizontal plane. इसी का अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ, कहाँ से देखो, इसी का अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूंगा तो ये कौन सा एक्सेस हो जाएगा स्टूडेंट मेरा? Z-axis. Z. वेरी गुड, जेड एक्सेस. ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव जेड और ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव जेड. समझ में आ रहा है? हाउ आर द थ्री एक्सेस? आर द थ्री एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो पार्टिकल पी यहाँ पे स्टूडेंट्स, पार्टिकल पी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन. कौन से डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. अगर पार्टिकल पी यहाँ पे है तो मुझे बताओ उसका रेडियस वेक्टर किस तरफ होगा? ये होगा इसका रेडियस वेक्टर. आया ना? है ना? Yes, sir. एग्री? यहाँ पे कौन से टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स? वेयर एग्जैक्टली द लीनियर टर्म्स आर. लीनियर टर्म्स विल बी व्हाट? सो लीनियर टर्म्स आर ऑलवेज अलोंग अ टैंजेंट. Always along the tangent. Students, ये देखो, ये सारे linear terms. How are the linear terms? Are the linear terms are parallel to x-axis, parallel to z-axis, or parallel to y-axis? Y-axis. Y-axis. So can't you say that the linear terms are acting along which axis, students? Linear terms are acting along which axis? Y-axis. यानी सारे linear terms देखो positive axis. कौन से? Linear displacement, linear velocity, tangential acceleration, tangential force,
लीनियर मोमेंटम, ये सारे कौन से एक्सिस में आ रहे हैं? तो सारे पॉजिटिव वाई, सारे कौन सा एक्सिस पे एक्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी देखो, कीपिंग योर राइट हैंड, लेट अस गो फॉर राइट हैंड स्क्रू रूल। याद आ रहा है वेक्टर्स में? ये जो मोशन है, P is moving in anti-clockwise, P stands for the particle, P stands for PU। अभी ये सोचो कि PU को हम लेते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर PU मूव हो रही है तो स्टूडेंट्स, वेयर इज माय थंब पॉइंटिंग? वेयर इज थंब पॉइंटिंग? Upwards. अपवर्ड्स, पॉजिटिव z एक्सिस, है ना? अगर PU को हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या पॉजिटिव z होगा या नेगेटिव z होगा एंगुलर टर्म्स? Negative z axis. वेरी गुड। देखा, PU के नाम का क्वेश्चन पूछूंगा तो PU आंसर देती है। वैसे तो लेक्चर्स नहीं अटेंड करते तो भी चलता है। Sir, Everything is just for the correct. first time I didn't attend it. I gave you the reason. I'm sorry. Fine, doesn't matter. You answering, I'm happy. That's why I said without attending lectures, you're answering. So good. देखो students, अभी anti-clockwise देखो, positive z, positive z. So now which are the angular terms over here will be along positive z axis? This is linear displacement. This is angular displacement. Measured in radians. Linear velocity, angular velocity. Linear acceleration, angular acceleration. Linear force, tangential force, or you can say tangential force, angular force, torque, linear momentum, angular momentum. Where exactly all of them are acting on which axis, students? Positive Positive. Z. Right. लेकिन यही अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज जाता तो सारे नीचे की तरफ एक्ट होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. So now if I ask you what is a plane of revolution, डांस देखना, what is plane of revolution of पार्टिकल P? तो तुम्हारा क्या होगा? XY प्लेन। कौन सा प्लेन है? XY प्लेन। द प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब सर्कुलर मोशन इज इन व्हाट डायरेक्शन? XY प्लेन। लीनियर टर्म्स along y axis, angular terms along positive z, motion anti clockwise। अभी समझ में आया साइन कन्वेंशंस पॉजिटिव कैसे लेते Yes, sir. हैं? Okay, and when do we consider motion as circular? When all the time V and R are mutually perpendicular to each other, the dot product will be equal to 0. Then we say that the motion is said to be circular. Now can I erase this entire board? Is this clear to all the students in the group? No, sir, please don't rub the tummy. Who said that? ये कौन बोला? Okay, Taksh, you said it. Harshal, are you there? Harshal?
Yes, Sakshi, completed. I'm waiting for you. Sakshi, completed. Reply भी नहीं कर रहा था. Yes, sir. Okay, fine. Okay, Harshal, fine. लेकिन हर्षल तो आंसर नहीं देता है. Harshal, are you there? Unmute करो हर्षल. ये खराब है क्या हो गया हर्षल? सर वाईफाई बंद मतलब वो बंद हो गया था तो फिर रुकने ऑन होने तक रुकना पड़ा मेरे को. Okay, fine. Fine. Okay, students. Now listen carefully, students. Question is, students, the body is moving in anti-clockwise direction. Okay. And final angular velocity is initial with initial. I wanted to show me direction of omega and alpha in this case, okay? Whereas same thing if I happen to go for anti-clockwise direction, final angular velocity is less than initial. I want to show me direction of alpha wave and omega. Similarly, motion clockwise. This is motion anti-clockwise. Okay, this is for motion clockwise. Agreed. If a body is said to move such that angular velocity final is less than initial, I want you to tell me direction of omega and alpha. क्या ये question clear हुआ सबके लिए? हाँ students. Students क्या ये question clear हुआ सबको? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दो. पहला केस में है मोशन एंटी क्लॉकवाइज के दो डायग्राम दिए हैं, दोनों केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है स्टूडेंट्स. मुझे ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन चाहिए, लेकिन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में ये सेंटर है स्टूडेंट्स. दोनों केस में ये जो डॉट पता है ना वो सेंटर है. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. लेकिन यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल. यहाँ पे मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा कहाँ पे होगा. ये लिखा मैंने सिमिलरली मोशन इन क्लॉकवाइज अगर मैं ले लेता हूँ, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ ओमेगा और अल्फा कहाँ पे होगा. Anyone? The most intelligent person of the class will be able to answer. Let's see who's the most intelligent one.
whether it's Farhan, Akash, Akshat, Anahita, are you there, Anahita? Yes, I'm there. Okay, hope you give a correct answer to me. Arib, you're not answering, you've stopped answering. Arshan, Ayush, Aishman, Harshal, Izar, the rest all of you all. Soham, Shub, Nikhil, Neha, Veer, Valentino, Taksh, Rashab, Pranay, you, Oj, Khushali, Nikhil, Khushali, are you there? Yes, sir. Why are you feeling sad? Your friend is answering. You is answering. Come on, answer fast. You can unmute yourself and answer, students, please, so that you can give a correct explanation also. सारे केस में मैंने ओमेगा और अल्फा के बारे में पूछा स्टूडेंट्स डायरेक्शन, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा अल्फा दोनों है क्या, आधे लीनियर टर्म्स और एंगुलर टर्म्स, बस खत्म हो गई बात. हाउ इज एंगुलर टर्म्स? एंगुलर टर्म्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस पे होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन. अगर सपोज इस सारे केस में मैंने ऐसा दिया है प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन, मेरा हाथ है प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन, पार्टिकल मूव हो रहा है प्लेन पे, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सारे एंगुलर टर्म्स मेरे परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होंगे. हाँ, तुम्हें ये बताना है कि ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तुम्हें बताना है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हाउ डू यू पुट फॉरवर्ड दैट? चलो लेट्स सी हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वन. Sir, ओके नहीं आया, चलो बोलो. sir, in anti-clockwise direction, it will be positive, right? Which one? For anti-clockwise direction you're saying? Yes, sir. Okay, so omega and alpha, both the cases, दोनों केस में it will be along positive. Yes, sir. Okay, और इसके लिए Negative. दोनों नेगेटिव. हाँ, Sir, doubtful. doubtful. Anybody who wants to disagree with Neha, who wants to go against, how many of y'all support Neha, how many of y'all oppose Neha? One who oppose, please give your answer. Let's see who's the one who wants to oppose Neha. Come on, rest of them fast. Absolutely correct, Neha. Screw rule तो use करना है ना. सर क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था आपने से. क्या बोल रहे यार? मतलब सब मतलब कॉक्सक्रू रूल से ही हो जाएगा, तो आपने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था. लेकिन सोच ना, इसमें भी तो कुछ है. मैंने लिखा है ना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैसा है. चलो सरेंडर स्टूडेंट्स, शैल आई आंसर फॉर दिस? आंसर करूं मैं? Yes, sir. ओके नेहा, यू आर इनकरेक्ट माय डियर. स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर्स तुम्हें सही कभी मिलते मालूम है? तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आंसर्स को लाने के लिए एक एग्जाम्पल आ जाता. अभी सारे अपने घर के अंदर पंखे चालू है स्टूडेंट्स. अभी सी तो फैन, सीलिंग फैन चल रहा है, देखो ऊपर, देखो सारे. क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या क्लॉकवाइज मूव हो रहा है? Anti-clockwise. हाँ, अभी नेहा इसी का स्पीड बढ़ा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, आया ना? Yes, sir. Yes, sir.
यही पंखे को 4 से 3 2 1 पे लेके जाओ तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर मोशन इज रिटार्डेड। मोशन क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन है स्टूडेंट्स, और ये मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड। यहाँ पे भी क्या है, रिटार्डेड। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि फाइनल यानी यहाँ पे तुम्हारा अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हारा अल्फा क्या होगा, यहाँ पे भी अल्फा तुम्हारा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा अल्फा क्या होगा, यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव। स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है, अल्फा है क्या स्टूडेंट्स, अल्फा इज व्हाट स्टूडेंट्स, अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम minus, let us say initial time is 0 या t2 minus t1, let us go for this। तो ये किस में होगा सर, ये न्यूमरेटर है रेडियन पर सेकंड में, डिनोमिनेटर सेकंड में है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिखोगे तुम, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम्हारा ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, अल्फा विल बी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स ये कैसे जा रहा है मालूम है, शायद तुम लोग ने लिया, हम लोग ने लिया, शायद क्या हम लोग ने किया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन t। कुछ याद आ रहा है जब मैंने काइनेमैटिक्स किया था, अगर मैंने बोला था स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। इफ फाइनल यस वेलोसिटी इज सर। ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। इफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन बिकमिंग, जीरो। 0। Yes, तो sir. can alpha also will be positive, negative and zero? Yes, sir. Yes, sir. जब भी मैंने वर्ड काइनेमैटिक्स यूज किया रोटेशनल का, तो तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए था तुम्हें। क्लियर हुआ, सबसे पहले ये बात क्लियर हुई सबको। Yes, sir. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, now carefully understand this. So now when I put forward, how do I put forward alpha? I can say alpha, students, alpha can be considered to be as positive, can be considered to be negative, can be considered to be zero. Now in this case, how is the motion? How is the motion? This is the motion is in clockwise direction, students. The motion is in clockwise direction. यानी if I happen to go for it, ये तुम्हारा xy plane है, agreed? ये कौन सा plane है? ये भी xy plane है students, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कौन सा प्लेन है, xy, agreed? हाँ स्टूडेंट्स, मोशन एंटी क्लॉकवाइज, मोशन एंटी क्लॉकवाइज, मोशन क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा z एक्सिस, पॉजिटिव z, नेगेटिव z, पॉजिटिव z, नेगेटिव z, यहाँ पे भी पॉजिटिव z, नेगेटिव z। लेकिन if final velocity is greater than angular velocity, students, omega and alpha both of them are on positive z-axis. ये है इसका डायरेक्शन दोनों का, एंटी क्लॉकवाइज, थंब विल बी अपवर्ड्स। लेकिन मोशन एक्सेलरेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, भले एंटी क्लॉकवाइज में है स्टूडेंट्स, ओमेगा यहाँ पे होगा, लेकिन अल्फा रिटार्डेड है ना, नेगेटिव है ना, तो अल्फा नेगेटिव z एक्सिस है। So what if the body is going to move in what direction? Anti-clockwise. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Please students, ध्यान से सुनो. Where is the direction of alpha? Students, direction of alpha is along negative z axis. It's along negative z axis. अगर किसी ने पूछा क्यों, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Final angular velocity is less than initial. यानी तुमने पंखे को बंद कर दिया, पंखा 4 पे घूम रहा था ना, फिर तुमने पंखे को स्विच ऑफ कर दिया, मोटर को ऑफ कर दिया, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होती जाएगी? Decrease. तो your final angular velocity is less. So what is the direction of alpha? Direction of alpha will be along negative z axis, but omega still will be positive. क्यों? Because motion is anti-clockwise. Agreed? Yes, sir. यहाँ पे देखो,
मोशन क्लॉकवाइज है, सिंस मोशन क्लॉकवाइज है, तो व्हाट अबाउट ओमेगा? क्लॉकवाइज मोशन में ओमेगा तो इस तरफ ही आएगा, नेगेटिव z एक्सिस पे ही रहेगा, अल्फा भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन क्या मोशन एक्सेलरेटेड है, रिटार्डिंग है? हाँ स्टूडेंट्स, Retarding. Retarding. तो अल्फा ऊपर की इन द डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नेगेटिव होगा तो अल्फा माइनस इंटू माइनस विद प्लस इन दैट केस मींस यू कैन कंसीडर अल्फा विल बी ऑपोजिट टू इट। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर किसी ने पूछा पॉजिटिव कभी होगा, व्हेन एग्जैक्टली अल्फा इज पॉजिटिव? अल्फा इज पॉजिटिव व्हेन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, when final is less than initial, when final is equal to initial। यहाँ पे अल्फा will be positive, यहाँ पे अल्फा will be negative, यहाँ पे अल्फा will be zero। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now can I erase this entirely? No, sir, wait. ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू से सारे, ये बहुत ध्यान से समझ के करो। Sir, Who's crying? sir, my neighbor's baby. Okay, Sir, हाँ बोलो। sir, can you explain this second example? कौन सा सेकंड एग्जांपल? Sir, anti-clockwise. देखो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? ये वाला ना, No, sir. ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। Yes, sir. सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट? Sir, right side one. ओके, अगर तुम राइट हैंड साइड देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड स्टूडेंट में थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्रीड? Yes, sir. यानी एंगुलर टर्म्स तो सारे पॉजिटिव z एक्सिस में होंगे, लेकिन अगर मोशन रिटार्डेड है तो सिर्फ अल्फा का डायरेक्शन चेंज होगा। यानी स्टूडेंट्स थीटा ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा ऊपर की तरफ होगा, आई गेटिंग इट? लेकिन अल्फा नीचे की तरफ होगा। ये बताता है कि मोशन इज रिटार्डेड। इज दिस क्लियर? Yes, sir, got it. फिर थर्ड वाले क्लॉकवाइज में भी तो अल्फा इट इज रिटार्डेड, सो अल्फा शुड बी डाउन ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. ओके, कैन आई इरेज इट स्टूडेंट्स? और यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है स्टूडेंट्स? थर्ड में क्या हो रहा है देखो ना, मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो फॉरगेट अबाउट एक्सेलरेटेड रिटार्डेड, ये बात की बात है, क्लॉकवाइज जा रहा है, सारे एंगुलर टर्म्स नीचे की तरफ होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव जेड में होना ही चाहिए। लेकिन अगर रिटार्डिंग होता है तो अगर अल्फा नेगेटिव जा रहा है तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? अल्फा तो नेगेटिव है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, तो अल्फा का डायरेक्शन चेंज हो गया। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? Yes, sir. इरेज कर दो। कैन आई इरेज इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके,
Okay, students. Now, when you speak about for circular motion, students, you have two kinds of circular motion. Do keep in mind, students. When I speak about circular motion, then your V and R are mutually perpendicular. The dot product is always equal to 0. Okay. Direction of velocity changes at each instant. But now, students, if I say magnitude of velocity, if it remains constant, and if magnitude of velocity does not remain constant, then you have two kind of motion, students. Direction of velocity goes on changing, लेकिन अगर magnitude of velocity remains constant, what kind of motion is this we call? UCM. It's called as uniform circular motion. This is very important. यहाँ पे when velocity, that means the magnitude of velocity does not remain constant, तो ये क्या हो जाए? Non-uniform circular motion. And you can call it as non-UCM, students. समझ में आ रहा है? यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? दोनों में क्या होता है? डायरेक्शन तो चेंज होगा भाई. स्टूडेंट्स, दोनों केस में होगा क्या? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा. ये ध्यान में रखना. पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो सही है. दोनों केस में होना जरूरी है. उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूसीएम होगा, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन यूसीएम होगा. क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर कोई एग्जांपल पूछे कि सर कैन यू गिव एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टिल बेटर, तो लेट अस गो फॉर सिंपल एग्जांपल. ओके चलो, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल स्टूडेंट्स? एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. चलो, तो बता सकता है? A person moving in a circular path, jogging in a circular path. देख Uniform. तेरी संसार की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया इंसान. Sir, conveyor belts. Of course, they are going with constant speed. Can be considered. Somebody said it jogging of it. तो jogging के अंदर जरूरी नहीं है कि you go with constant speed. You might change the speed also. So can be non-UCM. I want certain good examples, students. यानी जो तुम सुनते ही you'll say कि yes sir, this is absolutely correct. So take an example ना, students. Earth. Sir, Earth rotating around its axis. Revolving around the sun, not rotating, revolving around. Revolving. ये देखो ये एग्जांपल आया. फिर दूसरा तुम एग्जांपल लेते हो मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अरे हाँ सर, ये सारे सही एग्जांपल है. अरे सर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अरे हाँ सर, ये भी तो सर्कुलर मोशन है. आया ना? हाँ Sir, स्टूडेंट्स. giant wheel can be an example for this. व्हिच वन? Giant wheel. ऑफ कोर्स. Yeah, I'm coming to that only. A giant whale. A giant whale. मुझे बताओ ना यार, is giant whale is said to move in a horizontal plane or vertical plane? Vertical. है ना? वर्टिकल प्लेन में है. शायद तुम अगर बीच पे चले जाते हो या मडालिन पे चले जाते हो या जू बीच पे चले जाते हो या तो कोई अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हो. फ्रेंड्स, अगर तुम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो तो वहां पे जायंट व्हील होते हैं, बड़े वाले होते हैं, लेकिन वो मोटर से रन करते हैं. लेकिन शायद कुछ जायंट व्हील मैन्युअली भी ऑपरेट होते हैं. यानी अगर उनको देखोगे ना, तो जायंट व्हील को अगर तुम देखोगे फ्रेंड्स, तो 20 जायंट व्हील्स अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स, तो उनका सबसे मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होता है? तो बताओ क्या स्टूडेंट्स, जायंट व्हील का मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा? इट्स इन अ वर्टिकल मोशन स्टूडेंट्स. ये वर्टिकल मोशन है.
ये कौन सा है? ये सेंटर है। ये कौन सा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। व्हाट इज दिस? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। Is it an example of non-UCM? Yes, it's an example of non-UCM. क्यों? स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल क्यों है? non-UCM का एग्जाम्पल क्यों हमने दे दिया इसको? non-UCM क्यों दे दिया मैंने? क्योंकि सर इसका जो डायरेक्शन वो हमेशा चेंज होगा। लोएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। इट इज अंडर रूट। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, हम बाद में प्रूव करेंगे। ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट्स, r. What is velocity at the lowest point? 5 g/r. जब भी जायंट व्हील यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट 3 g/r. स्टूडेंट्स वेलोसिटी अंडर 3 g/r. टॉपमोस्ट पोजीशन पे क्या होगा बता सकते हो स्टूडेंट्स? टॉपमोस्ट पोजीशन पे क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी? जायंट Yes, व्हील sir. की यहाँ 0 होगी तो रुक जाएगा। जायंट व्हील कभी ऊपर जाके रुकता है क्या कि नीचे आता है? Sir, sometimes it stops. नो माय डियर, वो तो स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि नीचे पैसेंजर्स को बिठाना होता है तभी। Yes, sir. तो मुझे बताओ, अगर अगर रुकना ही होता तो उसका मतलब क्या है? मुझे ये बताओ, जायंट व्हील के अंदर तुम बैठते हो ना यहाँ, तो डू यू शाउट व्हेन यू गो अप और डू यू शाउट व्हेन यू कम डाउन? When you come down. है ना? उसका मतलब उसको मोशन में होना जरूरी है। Yes, sir. सर ऐसे ही वो रिवर्स साइड जो व्हील होता है उसमें भी यस, इलेक्ट्रिक हाइड्रल व्हील क्या बोलते हैं उसे? यस यस, हाइड्रो व्हील भी कंसीडर। यानी एट द टॉपमोस्ट पोजीशन आल्सो जायंट व्हील के अंदर वेलोसिटी होती है, रुकता नहीं है, अंडर रूट जीआर होगा। लेकिन जैसे तुम नीचे की तरफ आओगे तो देखो वेलोसिटी तुम्हारा वापस बढ़ गया, अंडर रूट 3 g/r। ये है वेलोसिटी यहाँ पे। लोएस्ट पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ये टॉपमोस्ट पोजीशंस है। यानी स्टूडेंट्स जायंट व्हील के अंदर, ध्यान से सुनना, जायंट व्हील के अंदर स्टूडेंट्स, डज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गोस ऑन चेंजिंग? आंसर गोस ऑन चेंजिंग। लोएस्ट पोजीशन में देखो सबसे ज्यादा है 5 g/r, अंडर रूट 5 g/r। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे क्या है? अंडर रूट 3 g/r। यानी ऊपर जाने के टाइम पे उसकी स्पीड कम होगी। टॉपमोस्ट पोजीशन पे स्पीड है लेकिन सबसे मिनिमम है। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करना। स्टूडेंट्स लेक्चर के बाद में क्या करो मालूम है? ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसका बेस्ट एग्जांपल अगर तुम्हें समझना है तो व्हाट यू डू ना स्टूडेंट्स, तुम क्या करो मालूम है? यू टेक अ बकेट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स एक छोटा सा बकेट ऑफ वाटर ले लो, ओके? शायद घर के अंदर होगा छोटा सा बकेट, और उसको ऐसा हैंडल होगा और उसको तुम हाथ से पकड़ना, हैंडल को, छोटा सा बकेट, ओके? और उस बकेट को तुम रोटेट करो। अभी ये बकेट देखो टॉपमोस्ट पोजीशन पे आ गया। टॉपमोस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पूरा बकेट इन्वर्टेड होगा, उल्टा आया ना? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. और ये हैंडल है, ये सेंटर है। तुम क्या करो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, पूरे बकेट को पानी से भर दो, और ये करना जरूर आई गेटिंग। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो बकेट तुम अगर घुमाते हो तो पंखे को छूना नहीं, ओके? कीप योर फैन, स्विच ऑफ योर फैन। व्हाट यू डू, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, उसको पूरा ब्रिम से भर दो, पानी से भर दो, फिर उसका हैंडल पकड़ो एंड देन यू ट्राई टू स्विंग। यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर, यानी तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा हाथ ये लंबा है, तुम्हारा जो हाथ है स्टूडेंट्स दैट बिकम्स योर पोजीशन वेक्टर, और तुम हाथ को स्विंग करो, okay? Then you think like that, can I take the entire hand and take your entire hand in a vertical motion? Students पूरे हाथ को ऐसा वर्टिकल मोशन लेते हुए ऐसा आगे की तरफ लेके आना, तो ऊपर से ऐसे लेके आना, जैसे बॉलिंग कैसे करते हैं वैसा है। स्टूडेंट्स ऐसा करना है तुम्हें, ट्राई टू डू इट। विल यू बी एबल टू डू इट? तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लो हो जाओगे, डरोगे पानी गिर तो नहीं जाएगा, घर पे गिरे तो मम्मा चिल्लाएगी। लेकिन अगर तुमने इस बकेट को सफिशिएंट वेलोसिटी दी, पहले तो तुम स्विंग करना, जैसे तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे हाथ को एक सफिशिएंट वेलोसिटी हुई, तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, स्विंग योर हैंड वेरी फास्ट। तो तुमने एक लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी दी। वो बकेट जब एक ऊपर जाता है स्टूडेंट्स, पूरा उल्टा होता है, पूरा पानी से भरा हुआ है, बट नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल कम, गिरेगा ही नहीं। यानी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लगा हुआ है जो पानी को बकेट से चिपका के रखता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर बाई चांस तुमने उसको सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं दी
और बकेट ऊपर चला गया तो पानी तुम्हारे सर पे गिरेगा, तुम्हारे आगे गिरेगा, यानी पानी और कहीं नहीं जाएगा। तो या तो तुम्हारे सर पे गिरेगा या पानी पैराबोलिक होगा, तुम्हारे आगे गिरेगा। ट्राई करना ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें पानी नहीं गिराना है तो डोंट यू थिंक सो यू आर गिविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट? यस। जब यहाँ पे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम होगी, यस। उसकी वेलोसिटी और कम होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती है यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। वापस यहाँ पे आ गया तो वेलोसिटी वापस बढ़ेगी, वापस यहाँ पे होगी तो मैक्सिमम होगी। ये क्या हुआ? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Earth revolving around the sun, students, performs uniform circular motion. मुझे बताओ, how much time does it takes to complete one revolution? Students? 365 days. 365 days. 365 days, 361 फोर्स। मुझे बताओ, जब ये अर्थ को परफॉर्म करना है सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे? शायद तुम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, है ना? रियल फोर्स और सीडो फोर्स। तो ये रियल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स है? फोर्स सेंट्रिपिटल। और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, सॉरी ऑफ सन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। यानी स्टूडेंट्स, अर्थ परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को? तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है? सर उसका डायरेक्शन अर्थ से शुरू होते हुए सन की तरफ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. वैसे ही मून जब भी रिवॉल्व करता है, ये देखो, अर्थ रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है, ये सारे कैसे रिवॉल्व करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो साइन कन्वेंशंस, मैंने अगर वेक्टर्स पढ़ा होगा तो साइन कन्वेंशंस हम लोग नेगेटिव क्यों पॉजिटिव क्यों लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? स्टूडेंट्स, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज को देखते हुए मुझे बताओ, अर्थ रोटेट होता है कि नहीं होता है? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. होता है sir. तो मुझे बताओ, अर्थ क्या क्लॉकवाइज रोटेट होता है या एंटी क्लॉकवाइज? डज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? Anti-clockwise. हाँ स्टूडेंट्स, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? बताओ। देखा, ये नहीं पता। East to west. Not at all. West to east. Students, Earth rotates from west to east, therefore sun rises from east and sets into west. Are you getting it? Students? Rotation of the Earth is anti-clockwise, west to east. Thumb pointing upwards. Students, एक छोटा सा ग्लोब लो तुम्हारे घर के अंदर। ग्लोब यानी अर्थ का, ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तुम अपना हाथ रखो, ये देखो ये ग्लोब है, और जैसे तुम रोटेट करना शुरू करोगे, ट्राइंग टू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव थंब क्या दिखाता है? पॉजिटिव एक्सिस दिखाता है। किसके लिए? फॉर ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज। सुन, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो सारे एंटी क्लॉकवाइज में। वैसे तो मून भी रिवॉल्व करता है अर्थ, इट्स गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे भी कौन सा फोर्स चाहिए? तो बोलोगे सर यहाँ पे भी हमें जो फोर्स चाहिए वो कौन सा फोर्स होगा? फोर्स सेंट्रिपिटल। ये फोर्स सेंट्रिपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो तुम तुरंत बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो तुम बोलोगे सर मून से अर्थ की तरफ जा रहा है। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Fine. Does electron also performs uniform circular motion around the nucleus? All electrons revolve around the nucleus of an atom of an element with constant energy. कुछ मालूम है? Atomic structure पढ़ा होगा? Yes, sir. Yes, sir. Now the motion of electron is uniform circular motion, students. अगर ये anti-clockwise direction, how does the electron move? Sir, electron revolves in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction के लिए कौन सा force चाहिए? तो यहाँ पे भी तो centripetal force चाहिए, यहाँ पे भी centripetal force होगा। वो centripetal force कौन provide कर रहा है? So this centripetal force is provided by electrostatic force. Electrostatic force
of positively charged nucleus. Students, there is a force of attraction between the nucleus and the electron. ये electrostatic force है, ये gravitational force है, ये gravitational force है. यानी यहाँ पे भी centripetal force है. वो centripetal force कौन provide कर रहा है? Sun provide कर रहा है. यहाँ पे centripetal force कौन provide कर रहा है? Earth provide कर रहा है. यहाँ पे centripetal force कौन provide कर रहा है? Nucleus provide कर रहा है. तब जाके इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से आता है. How is the direction of this centripetal force? It's always directed from the particle along the radius towards the center. क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So now when you speak about circular motion, what is circular motion, students? Circular motion simply considers motion of particles along the circumference of a circle with constant radius or along an arc with constant radius. What about velocity and position vector? So the direction of velocity goes on changing at each instant. How is velocity and position vector all the time mutually perpendicular to each other? So the dot product is equal to 0. But if the speed of the particle remains constant, it's uniform circular motion. If speed does not remain constant, it's non-uniform circular motion. The examples of uniform circular motion is Earth revolving around the sun, moon revolving around the Earth, electron revolving around the nucleus. यहाँ पे who's providing the centripetal force? Gravitational force of the sun. Who's providing the centripetal force? Gravitational force of the Earth. Who's providing the centripetal force? Electrostatic force between electron and nucleus. Students, what does this FCP stands for? What does FCP stands for? FCP stands for centripetal force. Centripetal force का मतलब centrally seeking force. Centrally, that is radially inward. So it's centrally seeking force. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रली सीकिंग फोर्स या रेडियली इनवर्ड फोर्स जो हमेशा पार्टिकल से सेंटर की तरफ जा रहा है अलॉन्ग द रेडियस. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सारे केस में स्पीड चेंज होगी. अगर कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेता है जायंट व्हील के अंदर तो नीचे की तरफ सबसे हाई स्पीड होगा. तभी जाके तुम ऊपर जाते हो, तुम्हें पेट में गुड़गुड़ होता है. जब ऊपर से नीचे आते हो तुम डरते हो और तुम चिल्लाते हो, है ना, स्पीड बढ़ती है इन दैट केस. तो ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. वही तुम बकेट ऑफ वाटर ले लो, अब ये करना लेक्चर्स के बाद में, और उसको जोर से घुमाना वर्टिकली. तो लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए. टॉपमोस्ट पोजीशन पे अगर बाई चांस तुम्हारा बकेट रुक गया तो पानी सर पे गिरेगा या आगे गिरेगा? ले फिट फटके मम्मा से. ऐसा कोई फिजिक्स पढ़ता है क्या? तुम्हारे सर को भी फिजिक्स नहीं आता है, चिल्लाना शुरू कर देगी, है ना. हाँ, हमनी मॉम सपोर्ट. हाँ स्टूडेंट्स, अगर तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो हमनी मॉम्स विल सपोर्ट योर कि चलो करो. एनी ऑफ द पेरेंट्स विल सपोर्ट योर. हाँ स्टूडेंट्स, ओके, ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट. लेकिन बी केयरफुल हो, सी टू दैट देयर आर नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नियर बाय, या सेल फोन वगैरह नहीं गिरा और पूरा पानी सेल फोन के अंदर या स्विच बोर्ड के अंदर, और मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे तुम लोग फिर कि दवे सर ने बोला. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. नो सर. सर मुझे गाइंट व्हील का एग्जांपल अच्छे से दिख नहीं रहा. आप थोड़ा सा अपना स्क्रीन शिफ्ट कर सकते हो प्लीज? ये कौन बोला?
Done, students? Is it done? Earth rotating around sun. Earth is not rotating, Earth revolves. Neha, Earth is revolving around the sun and it rotates about its own axis. यानी उसको rolling motion है. Okay, Neha? Students, can you hear me? Knock, knock. Yes, sir. Okay, fine. Earth revolve होता है और वो rotate भी होता है. Okay? Fine, students. In the next lecture, we'll be continuing further. I kindly revise this much. क्योंकि next lectures में भी formulas में देने वाला और कुछ derivations करने वाला students. Okay? And then after certain formulas, we'll be solving multiple choice questions, students. So see to it that जो भी angular terms मैंने दिए students, angular terms को अच्छी तरह से. Is that clear, students? Yes, sir. Chalo, bye. Take care. Okay. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, Bye. will you be sending the recording in the group?